Hello students, this is Ipshika Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, we have already learned about chapter number 6, Constitution, in your social science book. Today we will learn chapter number 7, that is Fundamental Rights and Duties. In this chapter, we will learn about the fundamental rights, what are the fundamental rights, then what are the fundamental duties, and what are the directive principles of state policy. Now, at your home, your parents are allowing you to do all the things. No, some things are there that your parents are restricting you, isn't it? So, there are certain things that your parents are allowing you to do, and there are certain things that your parents are not allowing you to do. And why don't they allow you to do these things? Why? Because if you do the things what your parents have not allowed, that things will uh, if you do that things, then that things will be not good for you as well as for the whole family. That is why they are not allowing you to do. Similarly, in our country, there are certain rules and regulations that are given to us, but the government is allowing you certain things which are good for you as well as for country, and it is also not allowing certain things to do which are not good for you as well as for the country. So they are known as the fundamental rights. Fundamental rights means the rights which are given to you as freedom for you, but you should also think to use that type of right so that it is not harmful for you as well as to your country. So students, you have already learned about what is constitution. So after learning about constitution, you know that our government has laid certain rules and regulation for the country to run smoothly, isn't it? But along with this rule, the constitution has also laid down certain rights and duties for citizens of India. So these rights and duties are described as fundamental rights and duties. So as our constitution has also given the citizen of our country certain rights and duties, but these rights and duties should be done in such a way that it should not harm you as well as your country, isn't it? So these rights and duties are called as the fundamental rights and duties. So now we will learn about fundamental rights. So what are the rights that has been given by the government to the citizen of India so that they can live in the country happily? So students, now according to your constitution, there are certain fundamental rights. इसका मतलब बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आपको आपके गवर्नमेंट ने दिया है, जो कि जिसको फॉलो करके आप को कुछ तकलीफ़ नहीं होगा, उल्टा आपको एन्जॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह के राइट्स जो होते हैं उसे कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स. So fundamental rights is a set of basic rights which every Indian citizen enjoys. These rights are those privileges which are essential for growth and well-being of an individual. So ऐसे सब rules दिए गए हैं जो आपके भले के लिए भी है. आप यदि उसको follow करेंगे तो आप भी एक अच्छे
पर्सन बन सकते हो, एक अच्छे इंडिविजुअल बन सकते हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें आपके खुद के लिए भी दिए हैं जिससे कि आपका पर्सनालिटी भी डेवलप हो। जैसे कि आपको पढ़ाई लिखाई का उन्होंने दिया है, स्कूल दिए गए हैं। फिर आपके ट्रैवलिंग के लिए आपको डिफरेंट टाइप के पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिए हैं। फिर आपको गार्डन्स दिए हैं, सिनेमा हॉल्स दिए हैं, जिससे कि आप आपका एंजॉयमेंट भी कर सकते हो और आप खुद भी कुछ सीख सकते हो। तो इस सब में गवर्नमेंट आपको कुछ बाधा नहीं देती, जो भी आप करना चाहते हो वो आराम से कर सकते हो। सो फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री. So whatever you do, if you want to get yourself educated or if you want to get yourself admitted to certain school, आपको यदि स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप आराम से जाके ले सकते हो। आपको उसको गवर्नमेंट को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पढ़ने लिखने की इच्छा है तो आप आराम से पढ़ने लिखने की इच्छा आपकी पूरी कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत, और आपको यदि किधर जाने की को इच्छा करता है तो आप आराम से बस में, ट्रेन में, प्लेन में बैठ के जा सकते हो। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो आपको ये सब जो राइट्स दिए हैं, ये सब राइट्स आपके खुद के हैं। आप खुद ही आपके डिसीजन ले सकते हो आराम से और जा सकते हो। सो गवर्नमेंट आपको किसी भी तरह से कोई भी हैम्पर नहीं करने वाले, ठीक है। सो इट मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स दैट दीज राइट्स आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑफ अ कंट्री. There are 6 fundamental rights guaranteed by Indian Constitution. So जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, गवर्नमेंट कभी भी आपके बीच में नहीं आएंगे। यदि आप वो काम सही तरीके से, सही रूल से कर रहे हो तो नेवर गवर्नमेंट विल इंटरफेयर। गवर्नमेंट आपको कभी भी उस काम के लिए ना नहीं भूलेंगे। सो देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। सो बहुत बड़ी जो 6 फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है राइट टू इक्वालिटी. सो फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज़ राइट टू इक्वालिटी. तो यहाँ पे है कि हर एक सिटीज़न जो है हमारे इंडिया के, उनको इक्वली ट्रीटमेंट गवर्नमेंट से मिलेगा, ये गवर्नमेंट का वादा है. सो दिस राइट गारंटीज दैट ऑल सिटीजन शेल बी इक्वली ट्रीटेड बाय द लॉज ऑफ कंट्री. सो कोई भी सिटीज़न रिच हो, पुअर हो, अलग अलग रिलीजन के हो, अलग अलग क्लास के हो, अलग कास्ट के हो, जेंडर मतलब लड़की हो या लड़का हो, और कहीं भी बॉर्न हुए हो, लाइक दिल्ली में बॉर्न हुए हो कि मुंबई में बॉर्न हुए हो कि मद्रास में, चेन्नई में बॉर्न हुए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबको एक तरह से ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा. सो दिस राइट ऑफ इक्वालिटी इज़ प्रोवाइडेड. सो मैंने आपको बोला था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स होते हैं उसके जो नंबर होते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर दिए गए हैं. आर्टिकल 14 to 18, मतलब जो रूल्स 14 से 18 तक लिखे गए हैं उसमें, ये रूल्स में ये वाला रूल है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है. सो आर्टिकल 14 to 18 गिव्स यू द राइट टू इक्वालिटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन बुक में जब आप उसे खोलोगे तो वो रूल नंबर 14 से रूल नंबर 18 तक आपको राइट टू इक्वालिटी वाला रूल मिलेगा, ठीक है. सो every individual, every citizen of India has the right to do anything in the country which should be legal and which should be beneficial to your country.
Now next one is right to freedom. Right to freedom means all citizens have the freedom to speak and express their thought, peacefully assemble or form peaceful groups, move or stay in any part of country, practice any profession or trade. Thus it is gives the citizen a right to life and liberty. The second your fundamental right is right to freedom. Freedom means anywhere, any ऑक्यूपेशन यू कैन डू मीन्स कोई भी काम आप कर सकते हो, प्रोफेशन और ट्रेड. प्रोफेशन मीन्स आप कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आप सर्विस कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, कोई भी काम आप कर सकते हो. घर पे बैठ के भी कर सकते हो, बाहर ऑफिस भी डाल सकते हो, आप स्कूल भी चला सकते हो. कोई भी काम जो कि कंट्री के लिए बेनिफिशियल है वो काम करोगे तो आपको कोई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी. और आपको यदि कहीं किधर बोलना है, सपोज़ आपको एक बड़ा कोई मंच में आपको बोलने के लिए बुलाया है, तो आप आराम से जाके वहाँ पे उन के बारे में आप आराम से बोल सकते हो. फिर आपको कोई फंक्शंस बनाना है, आपको शादी का फंक्शन करना है कि आपको बर्थडे का फंक्शन करना है, तो आप आराम से फंक्शंस कर सकते हो. आपको कोई स्कूल में एनुअल फंक्शन करना है, कॉलेज में एनुअल फंक्शन करना है, कोई भी असेंबली करना है पीसफुली, तो आप आराम से कर सकते हो. कोई कंपटीशन रखना है कि कुछ रखना है, बड़े से ग्राउंड में आपको पूजा रखना है, तो आप आराम से कर सकते हो. लेकिन जो भी आप काम करोगे वो किसी को हार्म ना करे या किसी को तकलीफ़ ना दे, ऐसी तरह के काम कर सकते हो. जिस तरह से आजकल आप देख रहे हो, आजकल नवरात्रि का सीज़न है, तो आप नवरात्रि में आपको गरबा आराम से आप करते हो, डांडिया खेलते हो, कोई भी कुछ बोलता नहीं है. लेकिन उन गवर्नमेंट के हिसाब से आपको एक टाइम मेंटेन करना पड़ता है. वो टाइम के बीच में आपने सब पूजा पाठ गरबा वगैरह कर लिया तो कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा. ठीक है. फिर आप कहीं भी घूमने जा सकते हो, आप कहीं भी रहने जा सकते हो. जैसे आपको मुंबई, आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, आपके पापा को मुंबई छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो आप आराम से जा सकते हो और वहाँ पे जाके स्कूल में एडमिशन ले सकते हो. सो यू कैन मूव और स्टे इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विदाउट हेजिटेशन. Thus, it gives the citizen the right to life and liberty. This right is provided. अब देखिए यहाँ पे ये रूल नंबर कौन सा है, आर्टिकल 19 to 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यू हैव द राइट टू फ्रीडम. सो देखिए ये रूल नंबर 19 से 22 रूल तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला आपको रूल मिलेगा, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम. Now the third right is right against exploitation. Right against exploitation is provided under Articles 23 and 24 of the Constitution of India. The right prevents exploitation of people by others. This means no person can be forced to do any work against his or her will. This right has made employment of children less than 14 years of age, human trafficking and forced labor in our country an offence. Thus, anyone found employing children below the age of 14, buying or selling humans or forcing someone to do work against his or her will can be punished by law. So this is your third fundamental right, that is right against exploitation. So exploitation का मीनिंग क्या है? exploitation का मीनिंग है कि कोई भी पर्सन को आप ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करा सकते हो. यदि वो पर्सन नहीं चाहता है तो आप उसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते हो. और यदि आपने कराया उससे ज़बरदस्ती काम तो आपको पनिशमेंट हो सकता है. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो इसमें कैसा है कि देखिए आप जो 14 ईयर्स से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन हु आर लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज शुड नॉट बी एम्प्लॉयड. 14 ईयर्स से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनसे आप ज़बरदस्ती
कोई भी काम नहीं करा सकते हो। यदि उसने अपने आप काम करने के लिए राज़ी है, 14 इयर्स के अंडर बच्चे ने यदि खुद से काम करने के लिए बोला है तो फिर ठीक है, लेकिन यदि उसको आपने ज़बरदस्ती काम करवाया उससे तो आपको पनिशमेंट हो सकता है। इसके अलावा यदि आप कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स छोटे बच्चों को आप मतलब आप उनको मार पीट के यदि उनसे काम करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हो और दूसरी जगह पे उनको काम करने के लिए भेजते हो तो उसे बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। तो ये भी आप ये सब काम में आपको यदि पकड़े गए तो वो भी आपको पनिशमेंट हो जाता है। ठीक है। सो इस तरह जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिर क्या ऐसे होता है कि बहुत, जैसे आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में जो ज़मींदार लोग रहते थे, ज़मींदार लोग अपने मज़दूरों को पैसा नहीं देते थे, है ना, काम करवाते थे उनको, खेती का काम और बहुत काम करवाते थे और उनको पैसा नहीं देते थे। सो दिस वॉज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इसे ही बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स काम करवाना और पैसा नहीं देना, ज़बरदस्ती काम करवाना। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्लॉयटेशन। सो ये जो एक्सप्लॉयटेशन राइट है, दिस इज़ इन योर कॉन्स्टिट्यूशन रूल नंबर, दैट इज़ आर्टिकल 23 एंड 24। सो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रूल नंबर 23 एंड 24 इज़ राइट अगेंस्ट exploitation. Okay, now fourth fundamental right is your right to freedom of religion. So right given to every Indian to choose, practice and promote any religion of one's choice. This means that all religions are given equal importance in India. Articles 25 to 28 of Indian Constitution discusses the right to freedom of religion. So right to freedom of religion means आपको राइट है कि आप कोई भी रिलीजन, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आप कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, आप कोई भी मंदिर, मस्जिद, कहीं भी चर्च, कहीं भी जाके आप प्रे कर सकते हो। आपको गवर्नमेंट कोई भी पनिशमेंट नहीं देगी, क्योंकि ये आपका राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो आप कोई भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट कोई पनिशमेंट नहीं दे सकती है। ये आपके चॉइस के हिसाब से आप कोई भी चीज़, कोई भी रिलीजन फॉलो कीजिए। सो इससे पता चलता है कि हमारे गवर्नमेंट ने हर एक रिलीजन को इक्वल स्टेटस पे रखा है ना, इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है। So Article 25 to 28 of Indian Constitution discusses the right to freedom of religion. So this was our fourth fundamental right. And next one is cultural and educational right. The right guarantees the citizen of India the right to maintain their own culture and language. It also allows people of religious and linguistic minorities to set up and run educational institutions of their choice to preserve and develop their own culture. This right is contained in Articles 29 and 30 of the Constitution. So this right, that is cultural and educational right, यहाँ भी क्या है, आप अपने चॉइस से कोई भी कल्चर या लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप मुंबई में रह रहे हो और आपको महाराष्ट्रन कल्चर पसंद है, आपको मराठी बोलना पसंद है, तो आप आराम से बोल सकते हो। आपको कोई भी गवर्नमेंट के लोगों से कुछ भी आपको पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है। यदि आप कोई और लैंग्वेज के हो, जैसे कि आप गुजराती हो, तो आपको पूरी तरह से चॉइस है कि आप मुंबई में रह के भी आप गुजराती भाषा बोल सकते हो, गुजराती स्कूल बना सकते हो, गुजराती स्कूल में पढ़ सकते हो।
तो इस तरह से आप कोई भी लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज आप अपने लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हो और उसके लैंग्वेज का आप उसके एडुकेशन भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश ही पढ़ना है, कि आपको हिंदी पढ़ना है, आप कोई भी लैंग्वेज में आप एडुकेशन ले सकते हो, लेकिन आपको जो भी एडुकेशन दिया जाएगा वो एडुकेशन गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर होना ज़रूरी है। सो योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट। तो ये जो कल्चरल राइट है ये आपके आर्टिकल 29 और 30 में लिखे गए हैं। Then right of children to free and compulsory education. This act is also known as the right of education. So this also comes under your cultural and education right. It was enacted by Government of India on 4th August 2009. This act provides a free and compulsory education for all children aged between 6 and 14 years. So यहाँ पे ऐसे दिया गया है कि 6 to 14 years of age, the time at which the children grow up, and this is the time to get the education. So ये जो एज है 6 years से 14 years के एज तक आपको गवर्नमेंट ने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए कहा गया है। आपको यदि कोई भी स्कूल में आप जाते हो, गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा। सो आपको चाहिए कि हर एक जो भी सिटीज़न ऑफ इंडिया हो वो पढ़े लिखे हो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट फ्री में एजुकेशन दे रही है। सो आपको ये राइट है कि आप पढ़ लिख सके। पढ़ोगे लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट भी रखा है, सो दैट चिल्ड्रेन कैन स्टडी। Okay, then the next right is right to constitutional remedies. The right to constitutional remedies is provided under the Article 32 to 35 of Constitution. This right allows citizens to approach a High Court or Supreme Court if they believe that any of their fundamental rights have been denied. Courts can issue orders and direct the government to restore the right of citizen. For this reason, Dr. Ambedkar considered the right to constitutional remedies as heart and soul of Constitution. So now this right is a right where if you find any problem in the articles, आपको इस राइट के अनुसार आपको यदि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिए गए हैं उसमें यदि आपको कोई भी तकलीफ़ होता है कि आपको ऐसे राइट है जो कि आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस आए तो अच्छा होगा, तो आप उसके लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपका जो भी ओपिनियन है वो आप रख सकते हो। तो वो यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वो ओपिनियन को वेरीफाई किया और उन्होंने समझा कि आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, तो उनको राइट है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल लिखा गया है उसमें भी चेंज करने का। Okay, so this is the reason why Dr. Ambedkar has the right to constitutional remedies and heart and soul of the Constitution. So इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इस तरह के राइट्स को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है इसमें क्या है, जो राइट 1950 में लिखे गए थे, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए थे तो 70 इयर्स के बाद कुछ तो चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो चेंजेस हम कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकते हैं और वो चेंजेस लाने के लिए हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यदि हमको अलाउ कर दिया तो दैट राइट कैन बी चेंज्ड। ओके, सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब कोई भी यदि आपको कुछ भी रूल में कोई भी तकलीफ़ है आफ्टर 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप इस रेमेडीज़ को मतलब जो भी
कुछ थोड़ा भी बहुत इधर उधर चेंजेस करना है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू हैव फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज मस्ट गो ऑन इन हैंड इन हैंड. So rights are the things whatever is given to you by the government to enjoy your life, isn't it? And duties are the ones which you should follow. So these duties are from your own side, isn't it? Rights तो गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं बहुत सारे, आप आराम से सब काम कर पा रहे. देखा आपने राइट्स जो पढ़े हैं 6 राइट्स, उसमें आपने देखा है कि आपको बहुत सारे फ्रीडम गवर्नमेंट ने दे के रखा है. लेकिन ड्यूटीज़ का मतलब है जो भी फ्रीडम आपको गवर्नमेंट ने दिया है वो सब फ्रीडम आप रूल के हिसाब से करेंगे, ठीक है. तो आपको यदि फ्रीडम दिया है बोलने का तो आप बोल सकते हो, अच्छी बातें बोल सकते हो जिससे कि आपके फ्रेंड्स को, आपके नेबर्स को, आपके सिटीज़न ऑफ कंट्री को कोई भी हार्म ना हो, आपके कंट्री को भी कोई हार्म ना हो. तो इस तरह के स्पीच आप आराम से दे सकते हो जो मोटिवेशनल हो, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छी तरह का आपको ज्ञान मिले. इस तरह के स्पीच दोगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी. लेकिन आपने यदि दूसरे तरह के स्पीचेस दिए जिसमें कि आप डीमोटिवेट होते हो, मतलब लोगों को आप भड़काते हो, इस तरह के स्पीचेस यदि आप दोगे तो दैट इज़ नॉट योर duty, okay, so that is against the law, so the government has the right to punish you. so इसीलिए ड्यूटीज़ जो है वो भी आपको देखना पड़ता है. तो आप जिस तरह से आपका फ्रीडम एंजॉय करते हो उसी तरह आप ड्यूटी भी रूल के हिसाब से कीजिए. Just as the Constitution has given us certain rights, it has also given us some fundamental duties to perform as responsible citizen of country. Originally, the Constitution did not contain this duty. Fundamental duties were added in 1976. Some of their fundamental duties in simple terms are as follows. So जो फंडामेंटल राइट्स है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे गए थे ड्यूरिंग आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस. लेकिन जो ड्यूटीज़ थे वो कब लिखे गए हैं, वो 1976 में लिखे गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया को जब फ्रीडम दिया जा रहा है तो वो फ्रीडम वो ऐसे इस तरह से उसका यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारे कंट्री को बहुत ही नुकसान हो रहा है. तो इसीलिए उन्होंने ड्यूटीज़ का भी एक एडिशन कर दिया था 1976 में. Now under duties you have certain points, that is respect our constitution and its principle, then respect the national flag and the national anthem, promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people, value and preserve our rich heritage and culture, help the government when the country is in danger, take care of environment, take care of public property, avoid acts of violence. So these are the duties. That means you should always respect your constitution, you should always respect your national flag and national anthem, then you should be always united. आप हमेशा हर एक रिलीजन कास्ट के साथ आपको यूनाइटेड होना है, आपको कॉमन ब्रदरहुड होना है, सो दैट देयर इज़ अ ग्रोथ इन आवर कंट्री. देन वैल्यू एंड प्रिजर्व अवर, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है, जो भी हमारे ओल्डन डेज के जो भी हेरिटेज है उनको हमको संभाल के रखना है. देन व्हेनेवर कंट्री इज़ इन डेंजर, कभी भी हमारे देश में कोई भी डेंजर आए, कोई भी एनिमी आए, कि कुछ भी डेंजर आए, लाइक अभी देखिए अभी कोरोना आया है तो ये क्या हुआ, ये कंट्री के लिए डेंजर ही है ना. सब सिटीज़न को डेथ हो रहा है, सब सिक हो रहे हैं ना. तो हमको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए. गवर्नमेंट को कैसा हेल्प करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको ऑलरेडी बोला है कि हमको जब ज़रूरत हो तभी हम बाहर निकले, नहीं तो हम घर में बैठे और घर का काम करें, और घर से ही हम स्कूल का काम हो, ऑफिस का काम हो, सब आराम से कर सकते हैं. और जब ज़रूरत हो तभी हम बाहर जाएं, और जब भी हम बाहर जाएं क्या करें, हमें मास्क लगाना है, हमें सैनिटाइज़ करना है, हमें
भीड़ नहीं करना है, ये सब कहा है ना। सो देखा आपने, व्हेन द कंट्री इज़ इन डेंजर हेल्प द गवर्नमेंट। तो हम जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है, हम यदि उसे फॉलो करेंगे तो हमारा कंट्री भी सेफ रहेगा, है ना। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन। ओके, देन टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट का भी टेक केयर करना चाहिए हमको, जैसे कि हमें जो ट्रीज़ है, प्लांट्स है, उन्हें ग्रो करना चाहिए। हमेशा ट्रीज़ प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, फॉरेस्ट को कट नहीं करना चाहिए। फिर हमारे जो भी एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, उनको भी हमें हार्म नहीं करना चाहिए। फिर टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स बस, ट्रेन, प्लेन, देन योर मोनूमेंट्स, ऑल आर पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी को भी हमें कभी भी हार्म नहीं करना चाहिए, उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम गार्डन वगैरह में जाते हैं तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर एक सिटीज़न वहाँ आता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें गार्डन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। यदि हमने कुछ वहाँ पे खा भी लिया तो जो भी हमारे जो भी लीटर्स है, जो भी कचरा है, उसको हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे आसपास के डस्टबिन में डालेंगे, सो दैट द गार्डन लुक्स नीट एंड क्लीन। डोंट प्लक द फ्लावर्स, वट एवर फ्लावर्स आर प्लांटेड इन द गार्डन। गार्डन में जो भी फ्लावर्स वगैरह के जो प्लांट हैं, उन्हें हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, फ्लावर्स को प्लक नहीं करेंगे, फ्लावर्स को तोड़ेंगे नहीं, उसको सुंदरता के लिए रख देंगे। फिर आपके गार्डन में जो झूले वगैरह, स्विंग है, then your seesaw hai, all the things are there, don't damage that things. Okay, so that is to take care of public property. Then avoid acts of violence. Avoid acts of violence means बाहर रास्ते में आपसे किसी से लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना चाहिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अच्छी तरह से समझा के बोलिए, और यदि आपसे नहीं होता है तो आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सो आप कभी भी झगड़ा और कोई भी चीज़ को नुकसान मत पहुंचाइए। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नाउ लाइक यू हैव सो मेनी ड्यूटीज़, आपको इतना रूल्स फॉलो करना है, आपको सब कंट्री के लिए करना है, उसी तरह से गवर्नमेंट भी आपके लिए कुछ करती है। सो गवर्नमेंट हैज़ सम ऑफ द रूल्स दैट शुड बी डन फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करने पड़ते हैं जिससे कि आप खुश रहें। जैसे कि ऑल द सिटीजन, मेन एंड वुमेन, शुड हैव इक्वल राइट्स टू वर्क एंड मेक ए लिविंग। सो गवर्नमेंट भी आपके लिए क्या करती है, आपके लिए काम देती है, आपको काम के पैसे देती है ना। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट देती है। बोथ मेन एंड वुमेन शुड बी गिवन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यदि एक मैन और वुमेन दोनों यदि काम करते हैं तो उनको इक्वल वर्क देना चाहिए और इक्वल पेमेंट भी देना चाहिए। All the people should be provided basic facilities like food, shelter and medical care. So whoever is the citizen of India, rich, poor, different religion, everybody should get the basic facilities. सबको खाना, घर और मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है। सो ये सब जो फूड, शेल्टर एंड मेडिकल केयर के लिए यू हैव सो मैनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। सो गवर्नमेंट के NGOs हैं जो हेल्प करते हैं आपको काम के लिए, देन खाना के लिए, देन योर रहने के लिए। आपको बड़े बड़े आश्रम हैं गवर्नमेंट के, वहाँ जाके भी आप रह सकते हो। और आपको मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी ज़रूरत है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हो, यहाँ पे आपका फ्री चेकअप हो जाता है। Then health and living standard of people should be improved. Then हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो, जैसे कि आप बीमारी से मुक्त रहे, आपका हेल्थ ठीक ठाक रहे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर आपने देखा होगा कि पोलियो वैक्सीन वगैरह ये सब वो देती है ना, बच्चों को देती है। फिर गरीबों को बहुत सारे फ्री में दवाइयाँ भी वो देते हैं। तो दिस हेल्प्स फॉर हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ओके, then you have interest of people belonging to scheduled tribe, scheduled caste and other backward classes should be protected.
सो जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस मीन्स दीज आर द पीपल who are poor and they are living in a very रिमोट एरियाज़। तो ये जो लोग रहते हैं ये बहुत ही रिमोट विलेजेस में रहते हैं, तो इनको बहुत सारे फैसिलिटी नहीं मिलते हैं। तो इनके लिए भी गवर्नमेंट ने इनको एजुकेशन के लिए, इनके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल किए हैं। एवरी चाइल्ड शुड गेट कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 years of age। तो ये वाला आपने पढ़ा है, पहले ही आपको मैंने बोला था कि गवर्नमेंट ने 6 to 14 years एज के लिए एक फ्री एजुकेशन का पॉलिसी लगाया है, जिससे कि 6 to 14 years, जैसे कि स्कूल पढ़ने के लिए आपको गवर्नमेंट स्कूल में अभी आप पढ़े तो आपको फ़ीस एकदम कम से कम फीस आपको देना पड़ता है। द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। सो हमेशा हर जगह पे पुअर और रिच दोनों को इक्वल फैसिलिटी मिलना चाहिए। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपको आपके कंट्री में अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, और उसके बाद आप इससे क्या कर सकते हो, आप दूसरे देश में जाके भी अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो। देन प्रोवाइड फ्री लीगल हेल्प टू ऑल सिटीज़न फॉर सिक्योरिंग जस्टिस। सो आपको यदि कोई भी इनजस्टिस दिखा, कहीं भी आपको कुछ भी रूल के ख़िलाफ़ दिखा, तो आप आराम से पुलिस स्टेशन जा सकते हो और वहाँ पे आपको हेल्प मांग सकते हो। प्रोटेक्ट ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। सो आपके जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, ये सब चीज़ों को देख रेख करना, इनका मरम्मत करना, इनको पेंट करना, इनको हर एक तरह से सिक्योर रखना, ये गवर्नमेंट का काम है। और इसके साथ आपका भी काम है कि आप भी इसे जिस तरह से गवर्नमेंट ने साफ़ सुथरी अच्छी तरह से रखे हैं, आप भी उसे वैसे ही रखने की कोशिश कीजिए। देन प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द environment, forest and wildlife of country। And another principle or policy of government is to protect the environment। आपके जो फॉरेस्ट है, जो नेचर के वाइल्ड लाइफ है, बर्ड्स है, उन सबको प्रोटेक्शन भी गवर्नमेंट करती है। इसीलिए आप देख पाते हो कि ज़ू है, आपके यहाँ पे नेशनल पार्क्स है, नेशनल सेंचुरीज़ है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने बना के रखा है, जिससे क्या होता है, जिससे कि जो भी एनिमल्स, बर्ड्स है, उन लोग नेचर में ही घूमते हैं और उनको गवर्नमेंट खाना, फिर उनका जो भी हेल्थ इश्यूज़ है वो गवर्नमेंट देखती है। इसीलिए फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह को वो अपॉइंट करती है। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट के भी बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं जो कि आपके बेनिफिट के लिए है। तो आप इसका भी सही ढंग से आप इसका इस्तेमाल करें। The Constitution of India has been created keeping in mind the general well-being of the Indian citizen. Hence, we should respect and follow our Constitution. So, आप देख पाए कि Constitution जो बुक है उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी लिखे हुए हैं वो सब आपके बेनिफिट के लिए है। आप अच्छे रहोगे तो कंट्री अच्छा रहेगा, है ना। सो जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उससे आप आपके वेलफेयर के लिए ही है। तो आप यदि हर एक ड्यूटी, हर एक फ्रीडम आप अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप भी खुश रहोगे और कंट्री भी सक्सेसफुल होगा। So with this we complete off with chapter number 7, fundamental rights and duties. Again for the exercise of this chapter you have been already given with the PDF। आपको आंसर की दिए गए हैं, आप रीड कीजिए चैप्टर को और एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ योर आंसर की। थैंक यू।